the information that you come up with, it is a very authentic information. Should I move to the next slide? Okay, I'll okay. So what are the sources of literature review? Primary sources as in the original research paper, first and data आपके पास है, peer review articles है, raw database है जो अभी कलेक्ट किया गया है, historical documents जैसे कोई भी ऐसा पत्राचार हुआ है पहले, क्या लेटर लिखे गए हैं, तो उस प्रकार का डाटा जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकता है. सेकेंडरी सोर्स इज एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस, या एनालिसिस आप कर चुके, जो जैसे मान लो एक थ्योरी थी, उस थ्योरी पे एम्पेरिकली काम हुआ, यानी एक किसी आदमी ने जैसे एक मोबाइल का जो कॉन्सेप्ट था, ऐसा बोला जाता है कि निकोला टेस्ला ने व्हेन ही वाज इन 1890 और 1900 के अंदर, मतलब निकोला आई थिंक डाइड इन 1946, तो उसी समय पे मोबाइल नाम की एक चीज होगी भविष्य में, ऐसा उन्होंने तब सोच लिया था, पर करने वाले लोग काफी अलग हुए. तो खैर, जब आप कोई भी इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं या दूसरे सोर्सेस से या लिटरेचर रिव्यू पेपर्स पढ़ते हैं, या मेटा एनालिसिस इज a calculative, what I will say, that it is an amalgamation of thousands of paper, put it into some mathematical domain, as in tabular format के अंदर की tertiary, as in the compilation of indexes of all the primary and secondary sources. It is मतलब एक thesis भी देखा जाए तो tertiary source बन जाता है एक समय के बाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि you are compiling the first hand information and the secondary information as well. Yeah. So strategic use as in a good review will have a compilation of all the three aspects. Next slide. So choosing a PhD topic, first of all, उस फील्ड में काम करो, उस चीज में काम करो जहां मन लगता है. I was working in a private company, मन नहीं लगता था. अभी I am working in teaching, अच्छा लगता है. मतलब it is quite difficult a job. जितने भी टीचर्स है वो बताएंगे कि it is quite a difficult job because of certain reasons. तो आप टॉपिक भी जब सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको उस टॉपिक के साथ 3, 4, 5, 6 साल बिताने पड़ सकते हैं, तो ट्राई टू, अगर लेट सपोज आप दलित लिटरेचर को लेकर या कुछ उस सेगमेंट में कुछ करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए उसी एस्पेक्ट में, या वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ करना चाहते हैं, एंड ट्राई टू चूज अ टॉपिक which can contribute anything to the society. I would say that don't do research for the sake of doing a research and getting a degree. I don't like such, personally it is a subjective opinion, I don't like doing research for the sake of getting a degree, doctorate का नाम के आगे लग जाएगा, दुनिया तारीफ करेगी. You are not solving any problem of the society if you are doing such kind of thing. Research gap, try to find unexplored area which provide an potential, they have कि original contribution हो कुछ ना कुछ. टॉपिक जब आप चूज कर रहे हो तो ऐसा टॉपिक एकदम ही बहुत नया कर लिया, उसके ऊपर लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है, सोचिए आप, तब भी दिक्कत हो जाएगी कि आपने ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जिसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं गया, तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपके पास लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल नहीं होगा. तो फिजिबिलिटी क्या है कि मतलब कितना डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि द थिंग इज दैट यू कैन आल्सो डू, बट देन यू हैव टू प्रोपाउंड ए थ्योरी, देन यू हैव टू राइट a new theory altogether which is not available in the world, and which is quite a hard task, which goes into the subjective domain altogether. What is the scholarly relevance? What is the most important part, reason why we are doing research is scholar या academics में आपका contribution क्या है, आप क्या contribute कर रहे हैं. 1 second, can I take a call? I think it is from Swiggy. 1 second only. Hello. हाँ सर, आप एक उनको गार्ड साहब को दीजिएगा, एक सामने गार्ड साहब होंगे. हेलो, हाँ आप उनको दीजिएगा, हाँ उनको दीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू. या नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू क्रिएट ए PhD synopsis. What is a synopsis and what is a thesis? First of all, we should also understand our research proposal for that sake. So one or the other way, research proposal is not synopsis is not your thesis. Research proposal में you go with a rough idea, आपको कुछ नहीं पता, सच में आपको कुछ नहीं पता. The people who are doing research, they know a bit of it. It is a very tough field to be in. The thing is, synopsis में क्या होता है कि आपका जो thesis होता है, आप उसी के जैसे table of content आपने बता दिया, आपने थोड़ा बहुत summary
it is a PhD synopsis is nothing but a summary of some 200 pages. So your synopsis will be something around 40 pages, not explaining everything, but providing the results. As in, आपके जो मेन मेन रिजल्ट आए हैं आपने उनको डायरेक्ट बता दिया rather than explaining. जैसे होता है कि आपने डायरेक्ट मैथमेटिक्स में आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिए, आंसर लिख दिया. स्टेप वाइज जो है वो पूरा स्टेप आप कैसे आंसर तक पहुंचे वो नहीं किया. बट होगा क्या, अगर आप जब थीसिस में जाओगे तो आपको सब कुछ वो मार्किंग होती है ना, कि मतलब यू हैव टू ईच स्टेप विल प्रोवाइड ए मार्क. तो थीसिस इज नथिंग बट वन और द अदर वे. इट इज लाइक कि आप जो है ना उसको और वाइडन करके चीजों को बता रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी वेरी क्लियर. लोगों को 3-3 साल 2-3 साल मैंने बिताते हुए देखा है ओनली टू फाइंड ए रिसर्च प्रॉब्लम. सो द थिंग इज थैंक यू. So the thing is, finding a research problem is a very difficult task. Just because in the first step, what most of the guide will do is throwing you under the bus kind of thing, as in read everything which is possible, and then after reading so much, the thing is you will come to a conclusion that these are 6 or 7 or 8 topics which I want to work upon. Then एक funnel approach होगी, फिर आप और कम करोगे, फिर you reach to a particular research problem that will create the topic, the research topic that you are going to frame. It provides the structured framework कि आपने literature review, आपका state क्या है, आपका objective क्या है, आप किस methodology से research कर रहे हैं, और आपका expected outcome क्या था या क्या आ चुका है. आपके जो methodological, आपके मतलब जो the concrete methods that you have used in your research. योर रिसर्च डिजाइन, आपका डिजाइन क्या है, आपने टूल्स कौन से यूज किए हैं, आपने डाटा के जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से आपने डाटा उठाया है. प्लीज बिलीव मी और प्लीज लिसन टू मी दिस थिंग वेरी केयरफुली. इफ यू आर ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, गो टू रिसर्च. इफ यू आर वेरी स्ट्रक्चर्ड इन योर लाइफ, go for research. Research only wants you to be structured. At the end of the day, it will change your life like anything. But after your PhD is done, you know what to do, you know what not to do in your life as well after you complete your PhD. And it will provide the scholarly significance, which the theoretical, practical part, and the contribution to the policy, whether it can contribute, it can change the policy of the country as well. So a PhD has a power to change the policies of a nation altogether. Might be a chance you might change the policies, like जैसे कंपनी लॉ, कुछ तो लॉ है वो आप चेंज कर सकते हो. सो यू हैव ए वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर डूइंग ए पीएचडी. अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं. इट इज नॉट माय सब्जेक्ट, फॉर दैट सेक इंग्लिश इज नॉट माय, मतलब इंग्लिश लिटरेचर आप राहुल सर से जो है वो ज्यादा समझ पाएंगे. बट यू कैन सी सम ऑफ द दिस examples which are over there, as in the study of cultural identity, so that people after उनको जब independence मिला होगा, post colonial जब Britishers गए होंगे, तो they might be trying to find the identity, just because a culture has been lost in the transition period when कोई आक्रांता आके अगर आपके ऊपर कुछ समय रहता है, तो to maintain the cultural identity that you have earlier. So these are some of the topics I think you can exploring environmental concerns in modern and classical texts. पहले के लोग कैसे environment के बारे में, जैसे हमारे हिंदू टेक्स्ट में या फिर वैदिक टेक्स्ट में काफी पूजा जो है, पूजा प्रार्थना प्रकृति की बहुत उसको महत्व दिया गया है. तो दैट यू कैन, और मॉडर्न के अंदर किस तरीके से दिया जाए, जेंडर और लैंग्वेज के ऊपर यू कैन रिसर्च. एंड डिजिटल लिटरेचर, आज के समय द लिटरेचर विच इज अवेलेबल, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर दैट वी आर स्टडिंग इज नथिंग बट ए डिजिटल लिटरेचर, which is nothing but not nothing, but it is not a very right kind of information that we are grasping. So try to even if you try to have a better algorithm, I would say that whatever the information that you are studying from the digital aspect, even the reels and everything, try to have a better algorithm. PhD topics in Hindi literature, तो आधुनिक स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में महिला केंद्रित आख्यानों का विश्लेषण,
या दलित साहित्य या आधुनिक हिंदी कथा साहित्य या आप भाषिक प्रतिनिधित्व जो है उसके ऊपर आप पीपल कैन वर्क. Try to have a topic which has been researched, not too much, not too little. Try to maintain a balance. बहुत ज्यादा पढ़ा जा चुका तो आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, बहुत कम पढ़ा जा चुका तो भी आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको मतलब आपको ही सब कुछ करना है. इट इज लाइक कि पूरा कंपनी आपको डायरेक्ट सीईओ बना दिया गया है. तो द थिंग इज ट्राई टू फाइंड ए बैलेंस कि मतलब बहुत ज्यादा ना और बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल ना हो. Economics में climate economics, as in the 17 SDGs which are over there, so carbon markets or sustainability policies which are over there, so that you can study inequality and growth in terms of like the income disparity between the people, especially in terms of the countries which are like developing countries. So long-term development plans of a country, behavioral finance, like the cognitive bias while you are making any decision. Though there's this picture over there, I think everyone should read this book if they want to be at least financially independent. The Psychology of Money by Morgan Housel. So I was thinking to suggest this book anyhow over to all the people. So if you want to, all of us want to have money, earn money at least. सो दैट तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इस जब हमारे पास टाइम रहेगा. एंड डिजिटल इकोनॉमी एज इन द क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल द फिनटेक एंड ऑल द एचआर टेक, ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट. सो यू कैन ग्लोबल सिस्टम इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो दैट कैन आल्सो बी डन. टॉपिक्स इन कॉमर्स कुड बी योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिनटेक इनोवेशन, forensic accounting, CSI and ethics, which is being most of the people are doing research in CSR and ethics, and most of the work in, I think, in the domain of management is going towards the behavioral science. That one or the other way you cannot take that topic out of the context altogether. Like you have to take the behavioral science anyhow. So the theory of cognitive dissonance and theory of planned behavior, there are so many theories of behavior. आप कुछ ना भी करोगे तो मैक्सिमम टाइम पे ये थ्योरीज आ ही जाएगी. पॉलिटिकल साइंस में some of the examples are there. I'll just move on to the next slide. These are not my like the best areas which I am in. So there are various kind of citation styles. So citation is most of you know, and citation is something which you are like whatever the information जो आपने आप प्रेजेंट कर रहे हो तो उसका सोर्स क्या है, आपको बस ये बताना है कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि द इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू टच सम $10 trillion और $5 trillion टू 2027, तो क्या मैंने मन में बना लिया ये बात कि मन में घटित इमेजिनेशन में क्रिएट कर ली है, या इसका कोई सोर्स है, न्यूज के थ्रू आया है, कोई ऐसे एजेंसी है गवर्नमेंट की, उन्होंने एक्सपेक्टेशन दी है, या फिर कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेट एजेंसी है जिसने बताया है कि देयर इज अ चांस ऑफ द कंट्री टू ग्रो बाय some 7%, 8%, 10% over a period of time. So the thing is you have to refer कि where you have taken the information from. अब क्या होगा कि हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी स्टाइल बदल जाएगी. It can be APA, it can be MLA, it can be Chicago style, Harvard style. होगा क्या, बस इसमें स्ट्रक्चर अलग हो जाता है. पहले किसी में ऑथर का नेम पहले आ जाता है, किसी में डेट पहले आ जाती है, तो किसी में आपको नंबर ऑफ पेजेस जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दीज आर जस्ट स्ट्रक्चर्स. एनी हाउ नाउअडेज आपको हाथ से तो कुछ लिखना नहीं होता. Everything is available with ChatGPT and even on Google Scholar, one of the websites where you can read the search paper, Scopus. Google Scholar is, I think, for the starting part of, if you are thinking to write any research proposal, please make it sure that you go and write your topic on Google Scholar. और लेट सपोज कोई हिंदी में है तो शोध गंगा पे जाके कोई थीसिस आप उठा सकते हैं या किताबें उठा सकते हैं, जिससे आप रेलिवेंट लिटरेचर जो है वो कंज्यूम कर पाए. और उसमें ऑप्शन आता है कि किस स्टाइल में आपको साइटेशन देना है, तो यू कैन गिव द साइटेशन. वेबसाइट अपने आप ही आपको प्रोवाइड कर देगा. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. आपको वर्क करने की ज्यादा जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस. इट विल, और अगर आपने गलती से कोई दूसरे एक ही स्टाइल में कर दिया और आपको चेंज करना है तो 2 मिनट में जाइए, चैट जीपीटी पे डालिए, कोई सॉफ्टवेयर पे डालिए, वो 2 मिनट के अंदर सब कुछ करके दे देगा. एंड देयर अदर सॉफ्टवेयर, जोटेरो, मेंडली सॉफ्टवेयर इज देयर, तो आप उसके थ्रू भी जो है इन टेक्स्ट साइटेशन, देयर इज दिस रेफरेंसेस इन द एंड,
and there's references in text citation as in जब आप लिख रहे हैं कोई भी लेट्स सपोज पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ लिखते समय भी आपको बताना जरूरी हो जाता है कि ये जो बात है वो किसने कही है, क्योंकि फिर तो आप क्या करेंगे, सब कुछ लिख देंगे और एंड में लिख देंगे रेफरेंसेस। ऐसा नहीं होता, आपको रिसर्च इज अ वेरी 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 हार्ड job at the end of the day. It is like a compilation of some, when you write a thesis, it is a compilation of some 200 different views, at least 200 different views. So that is what. So these are the some of the, I'll send the PPT to, I think Rahul sir को मैं भेज दूंगा। So वो फॉर्मेटिंग आपको बताता है कि कॉमनली इट इज यूज्ड इन साइकोलॉजी, एजुकेशन और सोशल साइंसेस के अंदर। एमएलए जो फॉर्मेट है वो लिटरेचर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज के अंदर यूज किया जाता है। हिस्ट्री की पब्लिशिंग में शिकागो, इसमें बस फॉर्मेटिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलता है। आपके डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपके एकेडमिक फील्ड के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आपके इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक एवरी जर्नल हैज अ डिफरेंट आस्क, एज इन लेट्स सपोज देयर इज वन जर्नल हु इज आस्किंग आप टाइम्स न्यू रोमन में 1.5 के गैप में इस पर्टिकुलर